Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and I'm Vikas Bharadwaj, and we are picking up those important themes and ideas which can help us in getting a good idea about prelims, mains, and even interview of the examination. The first concept, which is very important over here and can be seen, is that with respect to what Donald Trump was talking about Indian economy, is to be the fact that whether Indian economy is dead or not. What you gonna say? So the is Indian economy dead or not? That is the whole point. And in fact, this is being said. So here is an example of 1800 crore BEML rail hub manufacturing unit. This is one thing you can take up, and in Raisen district in Madhya Pradesh. And if you speak about India being tech reliance, tech self reliance, and how India can be top three economies, going to the next page, and we can find that there are examples which we can pick up by talking about how India can be more self reliant in respect to technological growth. So उसमें AI missions and other kind of NASCOM's role of other important bodies including startups, and there are a lot of examples which you can bring up including defense exports which are 600 crore as of now. So 600 crores in 2014, and now we can talk about 24,000 crore. That's what I'm saying, and it is continuously increasing. Coming to the point, another idea that how shrimp accounts for 90% of India's seafood exports, and stakeholders says tariff would give Ecuador and Vietnam an edge. So Andhra Pradesh is the 60% share of shrimp export from India, and 90% of large shrimp is exported to the US. Now it is going to be 60%. So that is the whole idea. India's seafood export about $8 billion and about 1.78 million metric tons. ये figures आपको पता होने चाहिए. It is accounting for India's 92%, I should say, seafood export. That is very, very important for the prelims. But the question ये आता है कि then how you are going to understand and think that mains में जब हम लिखने की बारी आती है तो how we can create a kind of a positive outlook. So US is a premium market supplying to all major stores, and the 40% of the shrimp in those stores are from Andhra Pradesh. Bulk of the shrimp is exported from Andhra Pradesh. Others are Orissa, and Odisha seafoods, particularly shrimp, they are also worth 2,000 crore annually. And we have to understand that how how we have to understand that how uh, you know uh, how we can actually make sure that it is not going to be impacting very badly. Large exporters with band value operate with 10% margins. Rest operate with 5 to 6% margin. Only about 20% of aqua product exporters are able to export to the US. Rest export to EU, China, Russia, Vietnam. That's how it is. So this is what we have to see. The losses will be tremendous, and there will be indirect impact on economy. That is what one case study we can pick up. Shipping a container worth 2 crore worth of aqua product will be charged more than 1 crore in tariffs. So no buyer will purchase that, especially when other countries like Vietnam with lower tariffs can export. So that is how now you have to think कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. हमारा उसके लिए हमारे पास आइडिया क्या है, हम उस आइडिया को कैसे फ्रूटिफाई करें. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन वी आर राइटिंग टू सॉल्यूशंस. दिस इज द होल क्वेश्चन. It is not about Andhra Pradesh prawn producers company. It is about the whole idea that how we are going to accept it. So accepting a tough time, even Andhra Pradesh chief minister is speaking on the lines. Now again, and from the example of urban governance, example of the city planning, from the example of how future development is taking place, Nava Raipur Atal Nagar. सो मल्टी सेक्टोरल आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कनेक्टेड लिविंग कैसे बात करते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन फॉर स्मूथर मोबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड पीपल सेंटर्ड है, कैसे है क्या वो क्या वो स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए भी है, क्या वो वाकई रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बायोस वेल्स एंड 40 प्लस रिस्टोर्ड लेक्स ये वाकई लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे. दैट इज द होल आइडिया. यू हैव टू ब्रिंग इट इन द पिक्चर. Similarly, the question with respect to Delhi case study, Yamuna Biodiversity Park, Amrit Biodiversity Park, Asita, Bansera, and Kalindi Biodiversity Park, they are all on Yamuna when Yamuna is in the spotlight. The five revamped sites, they are different intent also, and they are different impact also. So the question is that कि यमुना जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, what actually it is, grassland है वो, grassland, एंड इट हैज गॉट माउंट्स. तो नेटिव जो इकोसिस्टम है उसको रिवाइव करेगा.
एंड थिक चम्प्स ऑफ टफ्ड ग्रास है, जिसमें से चलना भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है। बाद में जामुन, अर्जुन, कदम, अकेशिया, इनके आपने इकोसिस्टम के साथ आपने जो है शिवालिक फुटहिल्स के वजह से आपने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। सो ट्रेल इज देयर, शैलो पॉन्ड्स आएंगे, रीड्स आएंगे, एक्वेटिक ग्रासेस आएंगी, एंड देन यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। सो अपीयरेंस ऑफ लेपर्ड वाज आल्सो देयर वंस। सो द पॉइंट इज that there is a huge difference between biodiversity parks and other green areas. So while aesthetics is the focus in the city parks, biodiversity is all about conserving river ecosystem. City parks rarely account for ecological development or ecological goods and services like pollination and dispersal, जो ये कर रहा है। ऐसे ही कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क है। So that is also a kind of a very important, जिसमें water hyacinth is spread like a green carpet across the wetland, choking the flow and lowering the oxygen level. वो करना है, उसको स्ट्रगल करके उसको रोका जा रहा है। More than 125 bird species हैं। बसेरा पार्क, इसका भी इंटेंट है एक। सो दीज यू टू ब्रिंग इन योर आंसर्स। येलो क्राइसेंथेमम और ट्यूलिप लाइन जो है वो एक वॉकवेज की तरह है। फिर साथ में आपके वाइड ओपन एरियाज भी हैं। असीता इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ओल्ड रेलवे ब्रिज और आईटीओ के यहाँ पर इसकी बात की गई है। विजिटर्स फ्रीक्वेंट वन पार्ट ऑफ द साइट एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया हैज बीन कच्चा ट्रेल्स along with restoring habitat. ऐसे ही अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क इज also more than 100 hectares and near Commonwealth Games Village. The park was developed by DDA in collaboration with CSIR, National Botanical Research Institute. उसमें भी 15,000 के आसपास नेटिव ट्रीज हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें ट्रेल बनी हुई है, जैसे दांडी मार्च है, आजाद हिंद फौज पाथ है, साइनेज है। सो इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एक तरीके का मंथन हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी सीन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे आइडियाज को अपने आंसर में लाएं। प्लास्टिक ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस ऑल्सो। इंडिया जो है it is aligning itself with nations like Kuwait, Saudi Arabia, Russia, Iran, and oppose separate provisions on the supply or measures to regulate primary polymers. और any phase out list for plastic products के भी अगेंस्ट है वो। सो सीपीसीबी डायरेक्टर इज ऑल्सो सेइंग दैट हमारा फोकस है प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस करना, और एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को ओवरलैप करने का फायदा नहीं है। पॉइंट ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे मे ऑल्सो escape being the part of responsibility because उनका टाइम तो चला गया। प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स के हाई इम्प्लीकेशंस हैं, और वो अप्रोचेस जो है वो सेपरेट आर्टिकल या सप्लाई को हमें रोकना होगा। तो पॉइंट यही है दैट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी ये कहना है दैट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव वे। इंडिया ने लास्ट ईयर प्रोडक्शन कट्स को सपोर्ट किया था, बट दिस टाइम इट्स एक्सप्लिसिटली बैक अरब कंट्रीज, क्योंकि वो तो फॉसिल फ्यूल कंट्रीज हैं, वो उनका काम कैसे चलेगा। So India has already passed a domestic regulation to ban single-use plastic products, balloon sticks, cutlery, straws, certain packaging material. और अंडर एनेक्स वाई में टेक्स्ट सिंगल्स और कटलरी, कैरी बैग, रिंस ऑफ कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, माइक्रोबीड्स के साथ ये सब भी फेज आउट के लिए बात की गई है। सो फाइनेंशियल चाहिए, टेक्निकल चाहिए, उसके बाद ऑब्लिगेशन आने से पहले एक तरीके का मल्टीलेटरल फंड बनना चाहिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज ने कंसिस्टेंटली अपोज किया अलग स्टेप्स को। तो ईयू, मैक्सिको, many African countries, Australia, they push for higher ambition because they are not in this process. India is in that process. और प्लास्टिक प्रोडक्शन लाइफ साइकिल पे फोकस करने की बात करते हैं, हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। लैब टेस्ट एट रूरल हेल्थ सेंटर्स कैन प्लग डायग्नोस्टिक गैप, टेक्नीशियंस नीड टू बी ट्रेंड। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है इंडिया जिसके लिए कमिटेड है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, और सिग्नेटरी भी है यूएनएसडीजी की अगर हम बात करें तो आउट जिसको हम ओपीडी कहते हैं, आउट पेशेंट केयर अकाउंट फॉर 60% ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। ड्रग्स है, डायग्नोस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसीलिए रिलायबल डायग्नोस्टिक सिस्टम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे सिस्टम्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं, पर वो अर्बन पुअर या फिर वास्ट सेगमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन के रीच में नहीं है। तो अर्बन हेल्थ सेंटर्स का ऑब्जेक्टिव जो भी वेल सर्व्ड होगा जब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे, जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में जिसकी बात हो रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो नेचर और उसके बाद उसका रेंज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इंडिया राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग साइड इन्फेक्शियस डिजीज की बात भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात भी है। तो उसको आप कैसे स्क्रीन करेंगे शुरू में। डायबिटीज एंड मलेरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांसेज इन मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिनेटिव इमेजिंग हैव उससे प्रिसीजन तो बढ़ा, बट कैन इट बी अप्लाइड at the primary level? Many can be, tele diagnostic, telepathology,
डर्मेटोलॉजी आर ब्रिजिंग द गैप, पर आप गांव तक कैसे पहुंचाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मल्टीपल टेस्ट आर अवेलेबल, तो विच वन विल बी देयर, विच इज गोइंग टू बेनिफिट मैक्सिमम, you know, which should be performed sequentially, which must be run simultaneously. ये सारे की सारी चीजें आप एआई की मदद से भी कर सकते हैं. डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम्स अब प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन ऑन सच क्वेश्चंस. आईसीएमआर को काम करना चाहिए. नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स जो रिवाइज किया गया है उसके अंदर अर्नेस्ट एफर्ट होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज के कॉस्ट भी कम आना चाहिए. डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी, साइफिलिस, ये भी अब सब सेंटर पे अवेलेबल होगा. डेंगू ऑब्वियसली, तो ये मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो यानी सीजनल स्पैन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज इज एन एसेंशियल फीचर. मैनी ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, जैसे आप ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं, लीवर एंजाइम, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, वो आप पीएचसी पे हो सकते हैं. डेंटल एक्सरेज विल आल्सो बी अवेलेबल. सो तो आपको ये सोचना है कि ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप इसको कैसे मेन स्ट्रीम बनाएंगे. इंडिया का जो ह्यूज बर्डन है उसको आप कैसे कम करेंगे, उसमें आपको 4 पॉइंट सोचने चाहिए. आरटीपीसीआर के जमाने से सोचिए जब कोरोना आता है. सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी बात की है. Unified welfare state, वही consolidated schemes of center, and the states will yield, what can say, long term dividends. So they both are provident fund commissioners, regional labor commissioner and provident fund commissioner. इंटरनेशनल लेबर डे की बात कर रहे हैं. तो वही बात है कि अगर आप पेंशन में 400 रुपए का हाइक कर रहे हैं और एल्डरली के लिए भी कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो पॉपुलिस्ट वेलफेयर पॉलिसीज में अटका रहे कि यूनिफाइड राइट बेस्ड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सिक्योरिटी सिस्टम बनाए. क्या कोई इकोसिस्टम बन सकता है? तो इसीलिए वही बात है, इंडिया का कैश और नॉन कैश सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आईएलओ की रिपोर्ट खुद ही कहती है कि कवरेज हमारा 24.4% है, और स्टेट लेवल प्रोग्राम अगर आप वो ऐड कर दोगे तो 48% तक जाता है. तो ऑप्टिमाइजिंग स्कैटर्ड स्कीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केट रेडी स्किल सेट्स को हम कैसे यूज करेंगे. The G20 New Delhi declaration है, it calls for sustainably financed universal protection coverage. A key word है, one nation, one social security governance. So e-shram registration are meant for organized workers. EPF registrations largely cover formal employment. They compete with each other, create problematic boundaries. जब ओवरलैप हो जाता है तो कैसे आप दूर करेंगे. सक्सेसफुल स्पेशल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर एक्सपीरियंसेस, आईएलओ ने आईएलओ देख पाई कि इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क ही इंपॉर्टेंट मदद कर सकता है. जैसे ब्राजील का द फोम जीरो प्रोग्राम, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उनसे बहुत मदद मिली. इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि डिजिटल इंडिया स्टैक जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, पीएम गति शक्ति जो है, और सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, इन सबको मतलब जो है सिक्योरिटी देता है वो वर्किंग सेगमेंट डिफरेंट फेडरल बाउंड्रीज को. और आपको मतलब बेसिकली 30 करोड़ अकाउंट जैसे ईपीएफओ मेंटेन करता है तो इसको और स्ट्रीमलाइन किया जाए. ईपीएफओ को व्हीकल माना गया है. लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईपीएफओ सेटल्ड मोर देन 5 करोड़ क्लेम्स. तो विकसित भारत आएगा. यूनिफाइड सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल ही हमारे लिए फ्यूचर का है. तो आपको उसमें सोचना है कि और कौन से आइडियाज आ सकते हैं. Then it's very important, if the fear becomes the state's currency, both the poor and privileged stand to lose out. This is in respect to of, when a campaign goes off against marginalized and the poor people, बांग्लादेशी सोच के आप अगर इंडिया इंडिया के ही अपने सिटीजन्स को बंगाली मानकर, बांग्लादेशी मानकर आप उनको धक्का देते हैं, तो प्रिविलेज्ड वंस को भी एक ना एक दिन देना पड़ेगा. प्रिविलेज्ड वंस आर आल्सो पार्टी टू इट, बिकॉज प्रिविलेज्ड वंस थिंक्स कि मेरा सोसाइटी बंद हो गई, मेरा गेट बंद हो गया, तो मुझे कल को मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप वो हॉस्टाइल पॉपुलेशन है सामने वाली. तो एक समय आएगा जो अर्बन फियर है, वो जो यानी ये हमारे जैसा नहीं है, ये वर्कर है, ये प्रेस वाला है, ये रिक्शा वाला है, ये सभी खराब है और ये सभी डेलिक्वेंट है, सभी अनसिविलाइज्ड है, ऐसा जो है. तो ये एक स्टेट इनिशिएटिव को जब आप सपोर्ट करते हैं तो आप तक भी बात पहुंचेगी, आंच आप तक भी आएगी. ये एक सामाजिक बात है. तो एक स्टेट का जो आइडिया है, एक डेंजरस आइडिया, जिसको अगर हम एक ग्रुप उसको मदद करता है, तो स्टेट फ्यूल्ड अर्बन फ्यूअर फियर जिसको हम कहेंगे, वो पर अर्बन पुअर को अफेक्ट करता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को अफेक्ट करता है. तो उसके लिए भी आपको एक ना एक दिन तो कीमत देनी पड़ेगी. वो क्योंकि माइनॉरिटी सेक्शन तक है आज तक, लेकिन कल तक वो आप तक भी पहुंचेगा. पब्लिक गुड जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और प्राइवेट कैपिटल उसको संजो लेती है, खींच लेती है, तो इसीलिए उसको भी समय लगेगा और आपको कीमत देनी ही पड़ेगी. आईएमईसी की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि यदि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मिडिल ईस्ट और यूरोप का कनेक्शन है, तो जॉर्डन इजराइल रिलेशंस आर प्रेजेंटली एट सिग्निफिकेंटली लो एंड वर्सनिंग ड्यू टू इजराइल अमेरिकन पुट. तो जॉर्डन जो है वो कैसे तैयार हो जाएगा. एंड पोटेंशियल फॉर सऊदी अरेबिया इजराइल नॉर्मलाइजेशन इज मच लोअर टुडे देन इन 2023.
और ऊपर से द वे इजराइल इज पुशिंग गाजा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स हाउ वी हैव टू सी। आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप्स हमारी हैं और हमारी पार्टनरशिप से मेहनत भी हो, जैसे रियाद और अबू धाबी, दे आर यूजिंग यूपीआई फॉर फंड ट्रांसफर्स एंड रेमिटेंस पेमेंट्स। IMEC कैन बी रियलाइज इन इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टेज फॉर्म, सिक्योर एंड स्टेबल मिडिल ईस्ट उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए तीन ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो होने चाहिए। इंडिया का जो राइजिंग फार्म एक्सपर्ट है, फार्म एक्सपोर्ट्स आई शुड से, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ फार्म, इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर फार्म प्रोड्यूस देन इंपोर्ट्स, व्हाइल merchandise exports are flat if not declining, agriculture exports are set to new high। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है, और उसको क्या चीज फ्यूल कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी इन द ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइसेस, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो उसका ही बताना है कि ऐसा हो रहा है। एंड देन ड्राउट ईयर अब जा चुका है, ला नीना की वजह से आपको ज्यादा मानसून, ज्यादा बारिश एंड ज्यादा आपको पानी मिलेगा, खरीफ बहुत अच्छी फसल होंगी। एंड अबो नॉर्मल मानसून विल बी देयर बिकॉज इट इज मोर देन 110%। ऑलमोस्ट ऑल मेजर एक्सपोर्ट्स हैव रिकॉर्डेड मेजर व्हाट आई शुड से मेजर इम्पेटस। सो कर्टसी क्या है, जो ब्राजील है, वियतनाम है, द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरेबिका एंड रोबस्टा वैरायटीज, अगर कॉफी की बात करें तो उनको कम आया, तो इसीलिए हम पे प्रेशर कम हुआ। सो फार्म एक्सपोर्ट्स आर दे आर नॉट लिमिटेड टू फ्यू कमोडिटी, जबकि इंपोर्ट में तो आप फ्यू कमोडिटीज कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो पाम ऑयल, पल्सेस, इवन सम फ्रेश फूड्स इंक्लूडिंग आलमंड्स, वॉलनट्स, ट्री नट्स। सो इंडिया पल्सेस इंपोर्ट भी बढ़ेगा बिकॉज सेंटर ने जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज को स्लैश किया, बिकॉज एल नीनो जो ड्राउट है उसकी वजह से हमने ऐसा किया था। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट पिक्चर, यू हैव टू मेक अ 100 वर्ड्स ट्रेंड एंड देन वी कैन मूव इट फॉरवर्ड। Nominations to J&K Assembly outside the realm of elected government, Union Home Ministry tells High Court. आप एक एग्जांपल सोच सकते हैं, द सेंटर हैज सेड द ऑफिस ऑफ द एलजी इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए वहां कौन लोग जाएंगे, दिस इज आउटसाइड दैट। Sanctioned assembly is strength है 114, but 114 plus all members nominated in terms of section 15, 15A and 15B of the act. The affidavit came after J&K High Court sought a reply from the Union government on October 21st, 2024 on the amendments to the J&K Reorganization Act 2019। तो जब तक राज्य नहीं बनता तब तक हम कह सकते हैं कि इस तरह की बात होगी, तो ये भी एक एलिमेंट है, उस पर हमें सोचना होगा। हाउ विलेजर्स फॉट फॉर एन एलिफेंट, ये एक एग्जाम्पल है, ये आप एथिक्स में लिख सकते हैं। हाउ the transfer of an elephant from Janmat in Maharashtra to Vantara in Gujarat following an apex court directive led to protest by Kolhapur residents reflecting their love and attachment to her। तो वही बात है कि यही असली समाज की बात है, यही एक असली सोच है, इसके लिए कोई भी आपको नकली वो नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल भी है कि कैसे पीपल्स पावर, या आप अगर जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू थिंक अबाउट इनफॉर्मल ग्रुप्स, यू हैव टू थिंक अबाउट सिविल सोसाइटी का रोल। तो ये सारी सारी चीज आप देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कन्वीनियंस ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज के कारण अगर आप उसे वांतारा में पहुंचाना चाहते हैं, पीपल डोंट वांट इट, देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन दिल्ली फेल टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस। सो कैसे होगा, ये है बस इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं है। एवरेज टाइम टेकन फॉर रेप ट्रायल त्रिपुरा में तो 2097 डेज है, दिल्ली में 1500 डेज, यानी कि आप लगा लो 5 साल की बात है। एवरेज टाइम टेकन फॉर पॉक्सो ट्रायल अगेन 1800 डेज। सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स meant to speed up trials, they are working very slow. We have to find the reasons. So political gimmick नहीं चाहिए। And how many cases can you fast track? Docket is overflowing, आप भर देते हो इतने। When you fast track one case, it is the cost of another case. So that is how the whole point is. The fast track special courts are not fast at all, पर हम उनको फास्ट कैसे करें, हम क्या करें, ये आप और मैं डिस्कस करके बात कर सकते हैं। जब हमने बात की है कि कैसे या तो कैसे उनको लॉजिस्टिक्स बढ़ाया जाए, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाए जाए, एंड व्हाट इज द होल आइडिया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पर है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गोदावरी रिवर इन कालेश्वरम ऑफ भोपालपल्ली इन तेलंगाना। एंड मेजर एलिगेशन इज दैट जो कंस्ट्रक्शन में आई है, दैट बैरेजेस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन परमिएबल फाउंडेशन रादर देन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो हैवी क्वांटम ऑफ वाटर को ले ही नहीं पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जुडिशियल कमीशन इज टू प्रोब लैप्सेस इन कालेश्वरम प्रोजेक्ट, इट वाज एन इलेक्शन प्रॉमिस ऑफ द कांग्रेस। तो वही बात आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है, देन हाउ इट इज। तो कंट्रोवर्सी तो है ही है, लेकिन इट इज अ लेट डाउन फॉर द गवर्नमेंट, लेट डाउन फॉर द पीपल। सेंट्रल वाटर कमीशन पहले भी था, ऑफिसर्स पहले भी थे, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का रोल पहले भी था, फिर ऐसा क्यों हुआ। सो ये एक एथिकल पर्सपेक्टिव भी है, जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव भी है, जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव भी है, सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम देख सकते हैं विच इज देयर।
So what are the new roles on the chemically contaminated sites? So ये capacity building program for industrial pollution management project के अंदर आने की बात है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नोटिफाई किया न्यू रूल्स को अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विद दैट लेज आउट अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग साइट्स विद केमिकल कंटेमिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पीटी के लिए नेक्स्ट ईयर. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल्स, यू नो, केमिकली कंटेमिनेटेड साइट्स के लिए. तो उनको बताया गया कि अगर इतना हजार्डस वेस्ट है डम्प्ड हिस्टोरिकली ओवर देयर एंड कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर इज डन एंड सरफेस वाटर इज पोजिंग अ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, देन इट इज देयर. So ये rules are very important so that one can, you know, one can formulate a national program for remediation of polluted site. So three broad tasks हैं: creating an inventory of probable, पहले तो acknowledge किया contaminated sites हैं, assessment and remediation, and developing a legal and institutional and financial framework for remediation of contaminated site. So that is why it is very important, and there are exemptions की जहां तक बात है, contaminations resulting from radioactive waste, mining operations, pollution of the sea, oil, water, and solid waste from dump sites will not be dealt with under these laws. They are governed by separate. They're very important for prelims. That's what I'm saying. It's very very important for prelims, and you have to also remember the complete act. अगर याद नहीं है तो सीट खोने को और घिसने को तैयार रहिए. India ASEAN officials to begin fresh round of talks to review trade agreement. बिल्कुल India has been moving forward, and Indian parties and Indian government is always very much ready. And we also know that India का जो what I can say is that जो डेटा है इंडिया एक्सपोर्ट टू आसियान कंट्रीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 34 बिलियन इंपोर्ट्स हैं, 34 I should say exports and not import. Exports are 34 billion, and whereas import is about trade deficit is about 12.9 billion. So trade deficit है और India's export to ASEAN countries had grown at an average annual rate of 1.7%, and whereas imports have grown at about 8%. So that is whole thing is about that हम उसको import को कैसे कम करें, export को हम कैसे बढ़ाएं. This is the whole point. गवर्नमेंट टू विड्रॉ ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल, क्योंकि इसके अंदर एक इशू आया कि कंसर्न वाज बिल्स रिलायंस ऑन टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स कि इतना टर्नओवर होगा, एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस के अंदर ह्यूज क्रिटिसिज्म हुआ. हाई टर्नओवर फिगर डू नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट डोमिनेंस. Government believes existing competition laws can manage big tech cases. This is how it is. So part of a rethink from the Ministry of Corporate Affairs, and the first commission a comprehensive market study involving consultation with other ministries वो होगा. उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो that is how India is going to work about it. Big FMCG players take battle to regional players. इसका मतलब वही है कि स्मॉलर टेरिटरीज में जाएंगे, रीजनल एरियाज में जाएंगे, रीजनल ब्रांड्स को फिर वो गल्प अप करने की बात करेंगे. और जैसे एग्जांपल है कि Gippy noodles from Balaji Wafers, which has gobbled around 60% market share in Gujarat in 2 years on the back of affordable pricing. Gippy's pack of 4, for instance, available for 45. Maggi का 60 है pack for 4. So regional flavors भी आ गए. So that's how it is. So small brands could no longer be ignored. They offered variety to consumers in small catchments and were easy on the pocket. So strategy है. Strategy will be to primarize at the upper end where Gen Z and millennials are ditching loyalties for new brands. At the lower end, large players will have to think small. We have also to think from that perspective as far as examination is concerned. India's next big priority is to be self-reliant in technology. Very true, जैसा हमने बात किया. And zero defect, zero effect. ये जो बात है हमारे उसमें होना चाहिए. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला. एंड ही सेड इट एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन कि उन्होंने ऐसा बोला जब वो बेंगलुरु में उन्होंने 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को उन्होंने ही लेड द फाउंडेशन फॉर द सेम. So fourth biggest largest economy in 2025 and the third largest by 27-28 and developed nation by 2047. That is very important. Focused effort होने चाहिए, like research development and innovation scheme. 1 lakh crore का कॉर्पस दिया, support sunrise domains, finance technology projects, acquire technology and set up and deep tech fund of funds. Very important keywords, इनको note कर लीजिए. Jan Vishwas Bill 2.0 is also very very important in that regard. So long term financing and refinancing at low or nil rates. Indian refiners cannot do without Russian oil, but with trade-offs. Experts say the shift would have to major economic and strategic trade-off. देखना पड़ेगा. Replacing Russian crude with the alternatives will shift, which will feed resulting in the lower middle distillates. तो वो बात हमने पहले भी की है. इंडिया ने जो है फर्म रिस्पांस दिया यूएस को, emphasizing the importance of maintaining energy security. और अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है. Even Donald Trump will also be moving back because he knows very well that this is not sustainable. और as long as it believes कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक और इंडिया का रोल है तो ऐसा नहीं होगा. Why CCI wants a probe into Google's ad tech business? Because Google जो है ये चाहता है कि
वो कंपटीशन को ना होने दे, ऐसा सीसीआई का मानना है। यदि ऐसा है, देन दैट इज व्हाट इज लुकिंग इनटू इट। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो व्हाट वर द सीसीआई ऑर्डर्स ऑन द पिटिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाई द पिटिशन केम अप, व्हाई द ऑर्डर केम अप, एंड गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को लीवरेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके उसका होना चाहिए। तो एड टेक स्टैक को समझना बहुत जरूरी है। इट इज अ चेन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। तो उसमें पब्लिशर, एड सर्वर, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, एड एक्सचेंज, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजर, एड सर्वर, ये जो है। तो गूगल का एड टेक स्टैक यानी उसके अंदर क्या क्या होगा, वो सारी चीजें आपको देखने की बात है। और द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और एडीआईएफ रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द डिजिटल इकोसिस्टम एंड इंक्लूड स्टार्टअप एंड इट्स मेंबर्स। तो उनका यही कहना है कि मौका नहीं देते। तो इसलिए बात वही है कि गूगल इज द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ एडटेक सर्विसेज एंड ऑपरेट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड प्रॉब इनटू एलिज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय द टेक जायंट इन द ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज मार्केट। तो इशू समझिए कि भाई कैसे उसका यूट्यूब से लिंक कर दिया, कैसे उसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात है। तो गूगल ने बोला ये सब गलत है, एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस हम नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है गूगल इज अक्यूज ऑफ टाइंग इट्स एसएसपी विद एडएक्स। तो अपना ही चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो वही गूगल आईडी आएंगे। और उसके बाद जो है मतलब दैट्स ऑल ओल्ड, मेरा घर मेरी मोनोपोली, वो वाला सिस्टम वाली बात है। तो वी हैव टू लुक फॉर द कीवर्ड्स ओवर हियर, और इसको आप अच्छे से लिख के करिए, देन वी कैन डिस्कस फर्दर। एंड देन फाइनली द टाइम फॉर बोल्ड एक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स, हमने पहले भी बात की। टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो कौन से 3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें सोचने चाहिए, हमने पहले भी बोला है। और उसके बाद फास्ट ट्रैक होना चाहिए और टारगेटेड एक्शन होना चाहिए, ये भी हमने बात की है। तो पॉइंट यही है, बड़े अच्छे पॉइंट है यहाँ पर, कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म के अंदर इंडिया जो है एनर्जी टैरिफ को कम करे, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट करे, फिक्सिंग लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसीज, लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करे। फिर उसके बाद इंडिया जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाए, सेमीकंडक्टर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इनको आगे बढ़ाए। उसके बाद एग्जाम्पल दिया कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लेके आए। ठीक है, हम कर रहे हैं उसके लिए, एमएसएमई के लिए भी हम कर रहे हैं। इंडिया यूके एफटीए की भी हमने बात की। एमएसएमई में हेल्थ एंड एक्सपोर्ट शुड बी बूस्टेड बाय रेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्पशन लिमिट, वो भी हमने बात की, वो भी हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है फोकस्ड एक्सपोर्ट लेवल पैकेज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, वो भी हम जानते हैं। इंडिया शुड वाइडन इंडस्ट्रियल सर्विसेज पोर्टफोलियो, पर क्वेश्चन इज कैसे। इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना शुड बी रिड्यूस, द क्वेश्चन इज कैसे। नीडेड तो ठीक है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर सेल, लिथियम बैटरी, एपीआई, प्रोडक्शन लिंक, पर करें कैसे, करने की बात आप बताइए एग्जाम में, ऐसे पॉइंट्स के साथ साथ। और फ्यूचर एफटीए जो है, do not worsen the inverted duty structures, finished goods from FTA partners entering India duty free, raw material from other countries facing import duties, ये जो है ये सारे इश्यूज को हम देख रहे हैं। एंड इंडिया मस्ट अर्जेंटली प्रिपेयर फॉर न्यू ईयू ट्रेड बैरियर्स जैसे सीबीएम, हम कर ही रहे हैं उसके लिए। तो इसमें से आप 8 पॉइंट के 8 वर्ड निकालिए और फिर उसका सोल्यूशन भी साथ में सोचिए। इस दिशा में सोचकर हम इसको पूरा कर सकते हैं। So this is all for the day, and you have to make the points out of it, and then try to be as smart as possible so that you can make a sense out of it, because that is the only way ahead to get success. Thank you very much for being with Ansarkari.